Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform जहां पर हम कॉमर्स के सभी टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्यों इकोनॉमी में एंटर कर जाता है। In the last video, I discussed about meaning and types of inflation. If you have not seen that video, I have put the link in the description box. You can go and check that also. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं causes of inflation. So increase in demand. First major cause of inflation entering into the economy is increase in demand. That means जब भी डिमांड बढ़ती है और सप्लाई को आप उतना नहीं बढ़ा सकते हैं, what will happen then? The prices will increase. All of us have studied that in law of demand कि जब भी डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाती है, so क्या होता है? प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो डिमांड बढ़ने के रीजंस बहुत तरह तरह के या डिफरेंट हो सकते हैं फॉर एवरी इंडिविजुअल। हम क्यों डिमांड अपनी बढ़ा देते हैं? सो मे बी किसी का सैलरी पहले से बहुत ज्यादा है, सो दैट पर्सन विल इंक्रीज द डिमांड ऑब्वियसली। या फिर जस्ट टू बी इन ट्रेंड पीपल आर डूइंग द परचेजिंग दैट दे डोंट एक्चुअली नीड। It's a very real cause. If you look around in your room, you will find a number of items in your room that you don't need but still you have purchased. What is that? That is some extra purchasing that we do that generates inflation into the economy. So although people are having one mobile phone, they need another mobile phone also. If they are having a number of clothes with them, still they need to have more clothes just to be in trend, just to shop with the friends. So उससे क्या होता है? हमारी डिमांड बढ़ती जाती है और जब भी डिमांड बढ़ती है, prices rise, which thereby gives inflation into the economy. So population growth. जब भी population बढ़ती है किसी भी कंट्री में, what will happen? The demand will obviously increase because now we have more mouths to feed. डिमांड करने वाले लोग पहले से ज्यादा हैं. So जब भी population growth होगा, so obviously demand will be more in the economy. और जब भी डिमांड ज्यादा होगी इकोनॉमी में, prices बढ़ जाएंगे, giving rise to inflation in the economy. Next reason can be shortage of goods. जब भी मार्केट में shortage of goods होगा, that means supply will be less than the demand. Because जब भी shortage of goods होगा, demand कम नहीं होगी, demand will be intact, जितनी पहले थी उतनी ही होगी. Now what will happen? Supply कम है and demand ज्यादा है. और जब भी ऐसा सिचुएशन आता है किसी भी गुड्स में, किसी भी सर्विस में, अगर सप्लाई कम होती है एंड डिमांड उससे ज्यादा होती है, what happens? Prices बढ़ जाते हैं, again giving rise to inflation in the economy. Devaluation of currency means आपकी करेंसी की वैल्यू पहले से कम हो गई है. फॉर एग्जाम्पल, पहले डॉलर वॉज 60 रुपीज, नाउ इट इज 80 रुपीज. दैट मीन्स अगर आप बाहर से कुछ इंपोर्ट करते हैं, अब आपको पहले से ज्यादा पैसा उसके लिए पे करना होगा बिकॉज आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, आपकी करेंसी वीक हो गई है. इन दैट सर्कमस्टांस व्हाट विल हैपन? People will prefer to buy domestic goods instead of purchasing from other countries or instead of buying imported goods. So उससे क्या होगा? आपकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी और जब भी डिमांड बढ़ती है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, what will happen? Prices will rise and inflation will come into the economy. इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. दैट मीन्स जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी में ज्यादा पैसा खर्च करती है. खर्च वो किस फॉर्म में करती है? मे बी द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ न्यू हॉस्पिटल, बिल्डिंग अ न्यू फ्लाईओवर, हैविंग अ न्यू प्रोजेक्ट ऑफ मेट्रो. सो उससे क्या होता है? द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी, डिमांड फॉर रॉ मटेरियल्स इंक्रीजेस इन द इकोनॉमी एंड पैसा ज्यादा सर्कुलेट होता है एंड गवर्नमेंट ज्यादा पैसा मार्केट में डालती है. That means now people are having more money than before, they are having more demand than before, so that will also give rise to inflation in the economy. Another reason can be cheap monetary policy. That means आपको सस्ते रेट्स पर, सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पर लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय बैंक्स. आप इजीली लोन्स अवेल कर सकते हैं बैंक से. Then what will happen? The demand of people will obviously increase and market में मनी सप्लाई भी बढ़ जाएगा. Let's take an example. आपको एक कार परचेज करना है एंड आपको लोन इजीली अवेलेबल है ऑन वेरी चीप इंटरेस्ट रेट्स.
सो ऑब्वियसली यू विल बी वेरी कीन टू परचेज द कार बिकॉज आपको सस्ते में लोन अवेलेबल हो रहा है एंड डिमांड विल राइज and the chances of you purchasing a car will rise because the monetary policy of government of RBI is cheap. So black money वो पैसा होता है जो अनअकाउंटेड होता है, जिस पर टैक्स पे नहीं किया जाता है, जो कहीं पर भी डिक्लेयर नहीं किया जाता है. So first of all, people don't pay any taxes on black money, and secondly, black money is स्पेंट मोर एक्स्ट्रावेगेंटली, ज्यादा तेजी से स्पेंड किया जाता है इन द मार्केट एज कंपेयर टू व्हाइट मनी. सो दैट इज वाई जितना ज्यादा ब्लैक मनी होगा इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे बिकॉज ज्यादा ब्लैक मनी मीन्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी एंड more demand also in the economy. So both ways it is going to contribute to inflation in the economy. Decline in savings, another one of the important reasons why inflation is coming to the economy, because आजकल लोग save ज्यादा नहीं करना चाहते हैं because the mindset of people is changing. They don't want to save for the future, rather than that they want to live in the present. They are spending a lot of money in present, which is increasing their demand and thereby giving more demand to the economy, which is another major reason to have inflation into the economy. आर्टिफिशियल स्कैरसिटी जो कि प्रिवेल करती है ड्यू टू होर्डिंग बाय प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स. सो इसमें एक्चुअली शॉर्टेज नहीं होता है गुड्स का, बट वो क्रिएट किया जाता है बाय प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स सो दैट दे कैन इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द गुड. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज परचेज करनी है और वो बहुत टाइम से अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो स्कैर्स है. सो जब भी वो चीज अवेलेबल होगी, आप उसके ज्यादा प्राइसेस पे करने के लिए रेडी होंगे बिकॉज आपको लगेगा कि ये चीज बहुत स्कैर्स है, अभी ये अवेलेबल है, सो आई विल परचेज इट. अगर थोड़ा महंगा भी है, स्टिल आई विल परचेज इट. सो दैट इज वाई समटाइम्स प्रोड्यूसर्स और होलसेलर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट. सो इसे हम होर्डिंग भी बोलते हैं, जब वो सामान अपने पास इकट्ठा करके रख लेते हैं रादर देन गिविंग इट इन द मार्केट और द इकोनॉमी. सो इस केस में जब भी वो चीजें मार्केट में अवेलेबल कराई जाती हैं, वो इंक्रीज प्राइसेस के साथ अवेलेबल कराई जाती हैं. सो दैट अगेन गिव्स राइज टू इन्फ्लेशन. Another major reason can be of inflation entering in the economy, exports. So every country wants to have good exports, so that to have a good balance of payments, favorable balance of payments. Exports करना हर country के लिए अच्छी बात होती है, but अगर exports बहुत ज्यादा किया जाता है, then what will happen? आप अपनी कंट्री की डिमांड को पूरा करने के साथ साथ दूसरी कंट्रीज की डिमांड को भी पूरा कर रही हैं. लेकिन अगर आपके पास उतनी सप्लाई नहीं है, then what will happen? आपकी जो सप्लाई है डिमांड से कम है. अगेन अगर सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, व्हाट विल हैपन? यू विल बी फेसिंग इन्फ्लेशन बिकॉज प्राइसेस बढ़ जाएंगे. वन मोर मेजर रीजन कैन बी टैक्स रिडक्शन. अगर टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस फर्स्ट. अगर इनकम टैक्स कम कर दिया जाता है बाय गवर्नमेंट, सो व्हाट विल हैपन? डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल विल इंक्रीज. दैट मीन्स अभी वो ज्यादा पैसा टैक्स में ना देकर अपने पास रख पा रहे हैं. उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम थी, दैट मीन्स इनकम माइनस टैक्सेस, अब वो बढ़ गई है. सो दैट मीन्स दे कैन गिव मोर डिमांड टू द इकोनॉमी. अगर वो ज्यादा परचेज करेंगे, सो ऑब्वियसली मार्केट में ज्यादा डिमांड होगी, और जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं. अगेन वी विल हैव इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. सो अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी, अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, देन अगेन व्हाट विल हैपन? डिमांड विल इंक्रीज बिकॉज अभी सामान खरीदना पहले से सस्ता है बिकॉज टैक्सेस कम हो चुके हैं. सो हम लोग सोचेंगे कि टैक्स पहले से कम है, सामान सस्ता मिल रहा है, सो वी विल बी परचेजिंग मोर ऑफ इट. और उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी एंड अगेन इट विल ब्रिंग इन्फ्लेशन इनटू द इकोनॉमी. That was all for today. The next topic will be how to control inflation in the economy. So stay tuned for the next video. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.